السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں ریئل ہسٹری RH چینل لے کر۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، آصفہ اس کے 11 ساتھی جو جاسوس ہیں، البرق جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا کماندار ہے اور اس کی بیوی۔ میرے دوستوں، میں نے لکھنا ہندی میں بند کر دیا ہے۔ چینل کے اوپر میں آپ دیکھیں گے CC لکھا رہتا ہے، اس کو جب دبائیں گے تو ہندی میں لکھ کر آنا شروع ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان عمرہ اور حاکموں کی تعیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے، پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کرے۔ سلطان کی تقریریں جوش تھا اور ایسا تاثر کہ تماشائیوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی، اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اونٹ ساتھ لائے اور 1000 کے قریب گھوڑے اور خچروں سمیت آئے۔ سلطان نے انہیں جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی تک محدود تھی کہ سپاہی کی کوئی ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی۔ انہوں نے فوجوں کو تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا۔ وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں۔ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے تھے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے ہر فوج گاہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ یہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے۔ ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہے۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاش ممکن نہیں تھی۔ سپاہی کی لاش اٹھا لائے،
उस हादसे की रिपोर्ट सुल्तान अय्यूबी को दी गई और ये भी बताया गया कि फौज में जराइम बढ़ गए हैं और 3 घोड़े भी चोरी हो चुके हैं। सुल्तान ने अली बिन सुफियान को बुलाकर कहा कि वो सिपाहियों के भेष में अपने सुराग रिसा फौज में शामिल करके मालूम करे कि ये जराइम क्यों बढ़ गए हैं। सुल्तान ने इस सिलसिले में अलबर्क को भी हुक्म दिया। इस क्यों का जवाब शहर के अंदर मौजूद था, जहां तक अली बिन सुफियान के सुराग रेसानों की रिसाई मुहाल थी। ये एक बहुत बड़ा किला नुमा मकान था। मिस्रियों का एक कुंबा नहीं बल्कि पूरा खानदान उसमें रहता था। इस मकान और मकीनों को शहर में इज्जत हासिल थी क्योंकि यहाँ खैरात बहुत तकसीम होती थी। नादारों को यहाँ से माली मदद मिलती थी। फौजी मेले में इस खानदान ने सुल्तान अय्यूबी को अशरफियों की 2 थैलियां फौज के लिए पेश की थी। ये सौदागर खानदान था। मिस्र में सुल्तान अय्यूबी के आने से पहले यह मकान सूडानी फौज के बड़े रुतबे वालों और इंतजामिया के हाकिमों के मेहमान गाह बना रहा था। सूडानियों को सुल्तान अय्यूबी ने आकर खत्म कर दिया तो इस खानदान की वफादारियां हुकूमत के साथ रही और यह सुल्तान अय्यूबी का वफादार हो गया। जिस रोज सुल्तान अय्यूबी ने अलबर्क और अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि वो फौज में जराइम की वबा के वजूहात मालूम करे, उससे अगली रात इस मकान के एक कमरे में 10-12 आदमी बैठे थे। शराब का दौर चल रहा था। कमरे में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। उसे देखकर सब उठ खड़े हुए। उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसका आधा चेहरा नकाब में था। कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया गया और लड़की ने नकाब उठा दिया। वो बूढ़े के साथ बैठ गई। कल अमीरे मिस्र तक इत्तिला पहुंच गई है कि फौज में जुएबाजी और बदकारी बढ़ गई है। बूढ़े ने कहा, हमारी आज की ये नशिस्त बहुत अहम है। अमीर ने सिपाहियों के भेष में फौज में सुराग रेसा शामिल करने का हुक्म दे दिया है। हमें उन सुराग रेशानों का नाकाम करना है। ताज़ा इत्तिला बड़ी ही उम्मीद अफजा है। 2 मिस्री सिपाहियों ने एक औरत पर लड़कर एक दूसरे को कत्ल कर दिया है। यह हमारी कामयाबी की इब्तिदा है। 3 महीनों में सिर्फ एक मुसलमान सिपाही ने दूसरे को कत्ल किया और खुद भी कत्ल हुआ है। एक आदमी ने बूढ़े की बात काट कर कहा, कामयाबी की यह रफ्तार बहुत सुस्त है। कामयाबी हम उसे कहेंगे जब अय्यूबी का कोई नायब सालार अपने सालार को कत्ल कर देगा। मैं कामयाबी उसे कहूंगा जब कोई सालार या नायब सालार सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर देगा। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम है कि 1000 सिपाही कत्ल हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुतमआ नजर अय्यूबी का कत्ल है। आप सबको पिछले साल के दोनों वाकयात याद होंगे। साहिल पर सुल्तान अय्यूबी पर तीर चला गया, वो खता गया। रोम से आदमी आए, वो ऐसे नाकाम हुए कि सब के सब मारे गए और एक बदबख्त मुसलमान हो गया। इससे क्या जाहिर होता है? ये कि सुल्तान को कत्ल करना इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं। ये भी हो सकता है कि अय्यूबी कत्ल हो जाए तो उसका जानशीन उससे ज्यादा सख्त और कट्टर मुसलमान साबित हो। इसलिए यह तरीका ज्यादा बेहतर है कि उसकी फौजों को इस खूबसूरत तबाही के रास्ते पर डाल दो जिस पर सलेब के परस्तारों ने बगदाद और दमिश्क के मुसलमान उमरा और हाकिमों को डाल दिया है। सलेब के परस्तारों और सूडानियों को शिकस्त खाए 1 साल गुजर गए हैं। एक ने कहा, इस 1 साल में आपने क्या क्या किया है? मोहतरम, आप बड़ा लंबा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। 2 आदमियों का कत्ल बेहद लाजमी है। एक सलाहुद्दीन अय्यूबी, दूसरा अली बिन सुफियान। अगर अली बिन सुफियान को खत्म कर दिया जाए तो अय्यूबी अंधा और बहरा हो जाए। एक और ने कहा, मैंने वो आंखें हासिल कर ली हैं जो सुल्तान अय्यूबी के सीने के हर एक राज को देख सकती है। बूढ़े ने कहा और उस लड़की के पीठ पर हाथ रखा जो उसके साथ आई थी। बूढ़े ने कहा, ये है वो आंखें, देख लो इन आंखों में क्या जादू है। तुम सब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक हाकिम खादिरुद्दीन अलबर्क का नाम सुना होगा। तुम में से बाज ने उसे देखा भी होगा। सिर्फ 2 आदमी हैं
जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में देख सकते हैं। एक अली, दूसरा अलबर्क। अली बिन सुफियान को कत्ल करना हिमाकत होगी। मैंने जिस तरह अलबर्क पर कब्जा कर लिया है उसी तरह अली पर भी कर लूंगा। एक ने पूछा, अलबर्क आपके कब्जे में आ चुका है? बूढ़े ने लड़की के रेशमी बालों को हाथ से छेड़कर कहा, हाँ, मैंने उसे इन जंजीरों में जकड़ लिया है। मैंने आज आप सबको चंद और बातें बताने के अलावा ये खुशखबरी भी सुनाने के लिए बुलाया है। हमें जल्दी बर्खास्त होना है क्योंकि हम सब का एक जगह इकट्ठा होना ठीक नहीं। इस लड़की को तुम सब शायद जानते हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी उस्तादी से ये ड्रामा खेल लेगी। इसकी उम्र देखिए, पुख्ता नहीं है। मैं पूरा 1 साल ऐसे मौके की तलाश में मारा मारा फिरता रहा कि अली बिन सुफियान या अलबर्क को या दोनों को फांस सकूं। मैं उनसे मिला कभी नहीं क्योंकि मैं उनकी शिनाख्त में नहीं आना चाहता था। फौजी हुकाम को सुल्तान शहरियों से दूर रखता था। आखिर उसने फौजी मेले का ऐलान किया और मुझे पता चल गया कि उसने अपने फौजी कमांडरों, सालारों और ओहदेदारों से कहा है कि मेले में वो शहरियों में बैठें और उनसे बातें करे और उन पर अपना रुआब नहीं बल्कि एतमाद पैदा करे। मुझे अली बिन सुफियान कहीं नजर नहीं आया। इस लड़की को मैं साथ ले गया था। अलबर्क नजर आ गया। उसके साथ 2 कुर्सियां खाली थी। मैंने लड़की को उसको बिठा दिया। उसमें 8 महीनों से उस्तादी तरीके से सिखा रहा था। मुझे अपना बूढ़ा खाविंद और अपने आप को खरीदी हुई मजलूम लड़की बताकर इसने अलबर्क जैसे मोमिन को अपनी खूबसूरती में गिरफ्तार कर लिया। मुलाकात का वक्त और जगह तय कर ली। मैंने उसे बताया कि उसे खंडर में क्या नाटक खेलना है। लड़की खंडर में चली गई। मैं 4 आदमियों के साथ वहां मौजूद था। 2 आदमी उस वक्त यहाँ मौजूद हैं। 2 को आप सब नहीं जानते। वो हमारे गिरोह के आदमी नहीं हैं। उसने अलबर्क पर साबित कर दिया कि ये उसकी खातिर जान दे देगी। हमारे चारों साथियों ने अलबर्क पर और उस पर तलवारों से हमले किए। उसने बर्छी के वार किए। ये नाटक इस कदर हकीकी मालूम होता था कि अलबर्क को शक तक न हुआ। कमबख्त के दिमाग में भी ये भी ना आई कि तलवारों के और बर्छी के इतने वार हुए मगर कोई जख्मी तक न हुआ। मैंने ये कहकर ये खेल खत्म किया कि ये लड़की इतनी बहादुर है कि किसी बहादुर के पास ही अच्छी लगती है। मैंने उसे खुशी का इजहार करते हुए अलबर्क के हवाले कर दिया। मैंने उसे अपना नाम आसिफा बता रखा है। लड़की ने कहा, मैं हैरान हूं कि इतनी पुख्ता उम्र का हाकिम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गया है। मैंने उसे शराब का आदी बना दिया है। उसने कभी नहीं पी थी। पहली बीवी उसी घर में रहती है। उसके बच्चे भी हैं लेकिन वो सबको जैसे भूल गया है। लड़की ने महफिल को तफसील से बताया कि उसने कैसे कैसे तरीकों से सुल्तान अय्यूबी के इस मुअत्तमद खुसूसी के अक्ल को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। उन 3 महीनों में ये लड़की मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के कई कीमती राज दे चुकी है। बूढ़े ने कहा, सुल्तान अय्यूबी बहुत ज्यादा फौज तैयार कर रहा